Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this video, we will discuss the salient features of saving bank account or saving fund account. These nomenclatures are used in banks. Saving account is a demand deposit account that is operated by either individuals up to the more than 10 years and above age, then minors under guardianship. These can be joint accounts opened by the trust, associations, HUFs, clubs. In these accounts, checkbook facility is available. That means funds can be transferred through checks also. Then debit card facility is also available, and through debit card, various transactions can be done in the account. Along with this, internet banking facility is available. Through internet banking, so many operations can be done. Then mobile banking is also available. Interest rate varies from bank to bank. That means interest rate applicable is not same for all banks. It varies from bank to bank. Customer can give standing instructions. Standing instructions means regular debit from the account and remittance of money to various people. Number of withdrawals are limited per quarter, per half year. These are varying from bank to bank. Then safe deposit vault, that means locker facility is also available to account holders. Minimum balance to be maintained on quarterly average balance system also varies from bank to bank. Then nomination facility is also available in the bank. The objective of saving account is to inculcate habit of savings amongst people. And that's why even zero balance accounts are also permitted. These are now called Jan Dhan Yojana account. Earlier they were called no frill account, and zero balance account is an old concept in banking. But with the change of government, names goes on changing of such schemes, and latest version is Jan Dhan Yojana. Then in some accounts even overdraft facility is also available. Then another feature in these accounts is automatically sweep to fixed deposits. There are variant of saving accounts where if a balance is more than a particular amount that varies from bank to bank, it automatically goes and becomes a FDR. And as and when demand is there for funds, this is broken and given to the customer. So customer can enjoy higher interest also by using such type of accounts. For current affairs, I have given you a very good source. Link is available in description. Click the link, you will land up on an app. Download the app, take this year plan and apply coupon code AA03. You will get 10% discount and access to exhaustive knowledge on current affairs and start reading from this. For acquiring good knowledge in banking, finance and economics, lot of videos are there on this channel. These are placed in a playlist. Playlist link is available in description. Make a habit of watching 10 to 15 videos per day. It will develop your banking knowledge tremendously. And to stay healthy, I have given you another playlist. In that, excellent videos on health management through diet is available. Watch these videos and stay healthy. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बचत खाता. बचत खाता डिमांड डिपॉजिट है बैंक्स के लिए और कस्टमर्स का सबसे फेवरेट अकाउंट है ये. व्यक्तिगत मीन्स व्यक्ति जो 10 साल या उससे अधिक के हैं वो अपने नाम में इस अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं. जो बाकी माइनर हैं वो अंडर गार्डियनशिप भी इस अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं. जॉइंट अकाउंट्स भी खोले जा सकते हैं. ट्रस्ट भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं. एसोसिएशंस भी इस अकाउंट को खोल सकती हैं. HUF भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं और क्लब्स भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं.
तो सेविंग अकाउंट इन व्यक्तियों के द्वारा खोले जा सकते हैं। इसमें जो सुविधाएं हैं, पहली है इसमें चेकबुक फैसिलिटी है। तो चेक के थ्रू पैसे को हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इसमें से भेज सकते हैं। डेबिट कार्ड फैसिलिटी है, डेबिट कार्ड के थ्रू हम एटीएम्स पे भी विड्रॉल कर सकते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी पेमेंट कर सकते हैं, पॉस मशीन के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इस पे इंटरेस्ट जो अर्न होता है वो वेरी करता है बैंक टू बैंक। हर बैंक में इसमें ब्याज की दर अलग अलग है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी इसमें जारी की जा सकती है। मीन्स आपके अकाउंट से पैसा एक निश्चित डेट को निश्चित अवधि अमाउंट रेमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं पैसा, इसकी सीमा है हर बैंक के अंदर। और अगर कोई व्यक्ति उससे अधिक बार विड्रॉ करता है तो उसको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट फैसिलिटी भी मिलती है इन कस्टमर्स को। लॉकर फैसिलिटी अगर वो चाहते हैं तो अकाउंट होल्डर्स को दी जाती है। मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट में काफ़ी बैंकों में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस का कंसेप्ट होता है और अगर कस्टमर उसको मेंटेन नहीं करता है तो चार्जेस भी लेवी होते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें वो नामांकन कर सकते हैं कि डेथ के बाद कस्टमर के ये पैसा किसको मिले। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज है। तो इस प्रकार विभिन्न फैसिलिटीज इन कस्टमर्स को दी जाती है। अब इसके वेरियस वेरिएंट्स भी हैं। अब जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसमें मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, पर जीरो बैलेंस से भी अकाउंट खोले जाते हैं जिनको हम नो फ्रिल अकाउंट करते हैं और काफ़ी सालों से ये सुविधा बैंकिंग में उपलब्ध है। गवर्नमेंट चेंज होने पे इस स्कीम का नाम जनधन योजना रख दिया गया था, मगर उससे पहले से ये चल रही है। नो फ्रिल अकाउंट सालों साल से बैंकिंग में चल रहे हैं और उसमें जीरो बैलेंस पे कस्टमर अपने अकाउंट रख सकते हैं। इन अकाउंट्स में कई एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे फ्री इंश्योरेंस मिल गई या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल गई। तो इस तरह की सुविधाएं भी होती हैं। फिर एक वेरिएंट होता है जिसके अंदर आपका जो बैलेंस है यदि एक सीमा से ऊपर हो जाए तो ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट अर्न करने लगता है और जब आपको ज़रूरत है वो ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट में वापस आ जाता है। अलग अलग नाम इसके अलग अलग बैंकों में दिए गए हैं। तो इस तरीके से सेविंग अकाउंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकाउंट है बैंकिंग के अंदर। करंट अफेयर की नॉलेज के लिए मैंने आपको एक अच्छा सोर्स बताया, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसको क्लिक करिए, आप एक ऐप पे पहुंचेंगे। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस साल का प्लान ले लीजिए, कूपन कोड AA03 लगा लीजिए, 10% आपको ऑफ मिल गया। अब आपको एक्सीलेंट मटेरियल करंट अफेयर का मिल गया, इसको आप पढ़िए। बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स की नॉलेज एक्वायर करने के लिए 10 से 15 वीडियोस डेली देखिए आप। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है और इस चैनल के होम पेज पे भी उपलब्ध है। अच्छी सेहत मेंटेन करने के लिए भी सिलेक्टेड वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन में। इन वीडियोस को देखिए और सेहतमंद रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।